रिकॉर्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। Okay, so we have already started the scheduling algorithm. In the scheduling algorithm, we have already completed the first one, that is SCFS, and the second one, that is SJF. Okay, so SJF can be a primitive one and can be a non-primitive one. Okay, so basically SJF का जो primitive version है, जो non-primitive version है, वो आपका है SRTM, जो हम लोग को आज पढ़ना था. ठीक है, पहले एक बार एग्जांपल लेते हैं सो दैट कि आप लोग भी फैमिलियर हो जाएंगे एंड आप लोग को भी चीज इजीली समझ में आ जाए. ओके, तो लेट मी टेक द एग्जांपल. एक सेकंड, थोड़ा सा. Actually, a lot of disturbance was coming from outside. That मेट्रो रेल का काम चालू है. So okay, regarding SJF, we suggested that the process which is having least amount of burst time will come for execution. Okay, it can be a preemptive one, it can be a preemptive one, and it can be a non-preemptive one. Okay, it can be a preemptive and it can be a non-preemptive. In preemptive, what will happen? We can take out the processes while they are executing. Okay, so we can preempt the currently executing process. Okay, we can preempt the currently executing process. Okay, short में लिख रहा हूँ. In non preemptive we cannot do so. ठीक है, ये जो कर रहा है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, because in non preemptive scheduling algorithm we cannot preempt the currently running process. We cannot preempt the currently running process from the execution. Okay, तो आई थिंक एक एग्जांपल भी लिए थे हम लोगों ने. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग को ऑन द वे थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ठीक है, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. So let us take the example P1, P2, P3, and P4. Okay, we are having four processes. Okay, and they are having burst time as 2, 5, 3, and 1. Okay, so these are the burst time which are given. Okay, the arrival is not given till here. Okay, in the next algorithm we will see the arrival time. Okay, so वहाँ पर आपको arrival timing का meaning भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे actually इसका use है. Okay, so let us make the Gantt chart first. Okay, so first of all हम लोग बनाएंगे Gantt chart. Okay, in this Gantt chart what we have to do, देखो ये जो होता है ना, फिजिकल अगर क्लासरूम होती है तो उसके अंदर इतना अच्छे से आप लोग को ये चीज समझ में आती, बट ऑनलाइन के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है. इसके लिए मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर को सोचा कि चलो इसको थोड़ा इस वे में लेकर जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग को मतलब फिजिकल क्लासरूम का फील आता है और इसके अंदर हम लोग अपने अपनी अपनी मर्जी से सारा कैलकुलेशन आपको बता सकते हैं. ठीक है, because कंप्यूटर के अंदर इस चीज को प्रोविजन है. एंड मोर ऑन दैट के वी आर एट होम राइट नाउ. टुडे वी आर एट होम, सो we don't have the pen tablet and all that so that we can show you with the help of this. Okay, so Gantt chart पहले बनाते हैं. Okay, according to the SJF algorithm, what does your SJF algorithm says? What does your SJF algorithm says? Shortest job first. Okay, out of all the processes, the process which is having least amount of burst time. So this is the burst time, you can say. These are the processes all. Okay, आगे और भी आएगा, देखेंगे बाद में. So out of these the process which is having burst time least, okay, is P4. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम लोग उसको ऐसा कभी भी बनाते हैं. So P4 is having only 1 millisecond of burst time. Okay, so P4 will come first. Okay, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए 0 से, sorry, so it will start from 0 and P4 wants to execute for only 1 millisecond. So the time is 1. P4 executed will go out. Okay, done. Your P4 has done. मैं इसको कर दिया मार्क. Okay, and now out of the remaining 1, 2, 5 and 3.
2, 5, and 3. Which process is having least amount of burst time? Obviously, your P1 is having least amount of burst time. So your P1 will execute for 2 millisecond. As you can see, it is having burst time of 2 millisecond. So it will execute for 2 millisecond. So 2 millisecond execute होगा भाई साहब. So 2 और 1 कितना हो गया ये? आपका जो timeline है, it becomes now 3. Okay. So after execution, your P1 will come out. Okay. After that, we have this P1 is also done. Now P2 and P3 is remaining. Out of P2 and P3, you can see the P3 is having least amount of burst time. You know, it is having burst time less than P2. So will come for execution. Your P3 will come for execution. It will execute for how much millisecond? It will execute for 3 millisecond. ठीक है. So 3 millisecond के लिए आपका execute होगा. तो ये रहा आपका 3 millisecond यहाँ पर. ठीक है. सो यहाँ पर आपका P3 आउट हो जाएगा. आप 3 मिली सेकेंड प्लस ये आपका जो टाइमलाइन, ये टाइमलाइन आपका कितना हो जाएगा? द टाइमलाइन बिकम्स टोटल 6. ओके. After that, we have this P3 is done now. Okay, we have last process which is having largest amount of burst time was remaining. Now we'll take this P2 execution as we have no other process which is remaining having least amount of burst time. Okay, so we'll call the P2 now because अब कोई नहीं बचा. अब P2 भाई साहब आएंगे. P2 will come. It will execute for how much millisecond? 5 millisecond. It will execute for 5 millisecond. Okay. So 5 plus 6 कितना हो गया? 11. ठीक है. So this is the Gantt chart for this particular data set was what is given. Okay, based on the SJF algorithm. Okay. Now meanwhile you can take the waiting time also. ठीक है. तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग waiting time. ठीक है. So ये waiting time आगे हम लोग calculate करेंगे. So we have to calculate the waiting time for all the processes which are coming for execution. Okay. So let us calculate the waiting time for P1. Okay. So first of all, you need to see that your P1 has waited for how much millisecond? Your P1 has waited for 1 millisecond. The things are going to be twist now. आगे चल के जो हमारे algorithm है उसके अंदर ये चीजें change हो जाएंगी. ठीक है. इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा मैं किसी को पूछने वाला नहीं यहाँ पर. ठीक है. अगर आप अच्छे से concentrate करेंगे, so you will easily understand all these algorithms. And as I already told you that कि ये वाला question exam में आपको आते हैं. Okay. और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ओके. सो अगर वहां सॉल्व अच्छे से करना है तो यहाँ पर एक बार अच्छे से इसको समझना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो यहाँ तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. ओके. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम फॉर ऑल द प्रोसेस. इट इज गेटिंग फोकस. एक्चुअली हमारा गूगल मीट ऑटो फोकस नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम देता है. तो ऑटो फोकस का ऑप्शन इसमें है भी नहीं वैसे. मैं इसको बार बार ट्राई कर रहा हूँ फोकस करने के लिए, बट गेटिंग ब्लर्ड एक्चुअली. Okay. Not a big deal. We can repeat this particular topic tomorrow also because tomorrow I'll be in college and I'll be having the pen tablet, so I can explain you at that time also. तो चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम फॉर P1. Now you tell me, okay, what is the waiting time for P1? So P1 has waited for how much millisecond? Your P1 has waited for how much time? इसका टर्न आने तक इसने कितना टाइम वेट किया? 1 millisecond. Okay, good. So it has waited for 1 millisecond. So that the time is waiting time is 1. Okay. Now how much time your P2 has waited? So the P2 execution has started at this particular point. Okay. So it has waited for around 6 milliseconds. So 6 millisecond. Then your P3 has came now. So P3 waited for around how much? That is 3. And then last one, that is P4. Your P4 has came for execution. It waited for 0 millisecond. Okay. So very good. So all has waited for this much amount of time. So you can easily calculate. आपको जब एग्जाम में लिखना रहेगा इसको तो इस तरीके से लिखना रहेगा. एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू, तो वेटिंग टाइम फॉर P1, P2 और P3 और P4 divided by 4. Okay. So this is the waiting time for P1, waiting time for P2. ठीक है. तो इज इक्वल टू, अब आपका P1 का जितना भी है इसको कर लो. 1 + 6 + 3 + 0 ऐसा कैलकुलेशन आपको बताना पड़ता है. तो 6 + 1 7 + 3 हो गया आपका 10. 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया आपका? 2.5 मिलीसेकेंड. राइट? एम आई राइट? प्लीज लेट मी नो.
ओके ठीक है, सो माय एवरेज वेटिंग टाइम इज 2.5 मिलीसेकंड, वेरी वेरी लेस, ओके, वेरी गुड वेटिंग टाइम, बिकॉज जितना हम प्रोसेसेस को कम वेट कराएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, वरना अगर आपने ज्यादा टाइम वेट कराया तो प्रोसेस बुरा मान जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग को कम से कम टाइम वेट करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आई थिंक यू कैन नॉट सी दिस वन, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको। So average turnaround time is equal to the turnaround time for P1, P2, P3, P4. Okay, divided by 4. Okay, is equal to how much? Your P1 took how much time? Okay, P1 ने execute हुआ 2 मिली सेकेंड के लिए। ओके, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली कैलकुलेट फ्रॉम ओवर ईयर ऑल्सो, बट बेटर है कि आप गैंट चार्ट में से कैलकुलेट करें। Very good, Anas. It is 5.25 millisecond. That is the average turnaround time for all the process. Okay. So you can calculate over here for P1 how much time. P1 ने 2 plus 1 3, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। P2 6 plus 5 11, P3 3 plus 3 6 and P4 1 plus 0 1। ये वे भी है कैलकुलेट करने का, 5.25 मिली सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये वे हो सकता है, और दूसरा वे ये हो सकता है कि आप P1 को चेक करेंगे। सो P1 has waited for how much time? 1 millisecond, executed for 2 millisecond, तो 1 plus 2 how much? That is 3 millisecond. Okay, so for P2 has waited for 6 millisecond and executed for 5 millisecond, so 6 plus 5 11। ठीक है, so in this way you can calculate। तो ये हो गया। देखो यहाँ पर चीजें बहुत सिंपल है, बिकॉज एकदम सिंपल सिंपल अल्गोरिथम है, आगे चल के कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, इसके लिए मैं आपको अभी थोड़ा सतर्क करना। ओके, सो चलो ये आपका एसजेएफ का हो गया। ठीक है, नाउ विल मूव अहेड। ठीक है, आगे हम लोग एक और दूसरा एल्गोरिथम करते हैं, विच इज SRTN, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, SRTN, आई थिंक यू कैन सी दिस। SRTN लिख के रखता हूं मैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोलते हैं इसको, SRJF, इसको भी SRJF भी बोलते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। थोड़ा उसका आगे का एक वर्ड का वो है चेंज है, बट लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये जो बेसिकली सबसे पहले इसका थोड़ा हम लोग थियरी कवर करते हैं। थियरी इन द सेंस के दो तीन पॉइंट इसके बारे में, दो तीन पॉइंट पहले कवर करते हैं। दिस इज द primitive SJF version. Okay, as I told you that your SJF can be a primitive or can be a non-primitive. Okay, so this is the primitive version of SJF. Okay, जो हम लोग ने अभी ये देखा एग्जांपल, आपके सामने जो एग्जांपल था P1 P2 P3, it was a non-primitive scheduling algorithm. It was non-preemptive. Okay, ये आपका नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एसडीएफ का वर्जन जो हम लोग ने अभी एग्जांपल देखा यहाँ पर। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका प्रीम्प्टिव वर्जन। प्रीम्प्टिव वर्जन में से मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका P1 है, P2 है, उसके बाद में आपका P3 आता है, और उसका अगर कभी जो बर्स्ट टाइम है कम है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू expel the currently running process from the execution and we have to admit the newly arrived process। ठीक है, जो नया आया है उसका अगर कम है तो उसको पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखते हैं, आप लोग एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, सो द वन व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ हियर इज द नॉन प्रीम्प्टिव वर्जन। ओके, एसजेएफ का नॉन प्रीम्प्टिव वर्जन है, एसजेएफ का नॉन प्रीम्प्टिव वर्जन है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी is the primitive version of SJF. Okay, it is the primitive version of SJF, shortest job first का primitive version। मतलब क्या होने वाला है इसके अंदर, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर अपने प्रोसेस को निकालने वाले हैं इन द सेंस कि उसको प्रीम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीम्प्ट क्यों करने वाले हैं, बिकॉज हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस आए कि जिसकी मतलब कि जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, बिकॉज हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट वो क्या है,
हमारा कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट अभी से बोल के रखता हूँ, इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द न्यूली अराइव्ड प्रोसेस, if the burst time of the newly arrived process is less than the currently running process, then it is preempted. Okay, जो प्रोसेस हमारे जो हमारा करंटली रनिंग प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम से अगर कम वाला कोई न्यूली अराइव प्रोसेस का बर्स्ट टाइम अगर है तो हमको अपने जो करंटली रनिंग प्रोसेस को निकालना पड़ेगा, प्रीम्प्ट करना, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। अब जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और हम लोग को इसके लिए 5-10 मिनट लगेगा, ठीक है। एकदम शांति से अच्छे से जरा ये एग्जांपल देखो मैं चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट अस टेक द प्रोसेसेस फर्स्ट। ये मेरे प्रोसेस है, आई होप यू कैन सी दिस वन। सो प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4, आई एम हैविंग दिस 4 processes right now, ठीक है। And the burst time is also given, like the burst time is 7, 4, 8 and 3, okay, so these are the burst time which are given। मैं इसके अंदर जगह थोड़ा स्पेस ज्यादा रख रहा हूँ बिकॉज आई हैव सम वर्क, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, ठीक है। So everyone please concentrate and please focus, okay, this is very very important। अगर ये concept अगर आप लोग समझे, so the Viva question based on these particular 2 algorithms will be very simple to you, okay। So now let us come to the next field, that is arrival time, okay। So here arrival time is also given, arrival time is given in such a way that your P1 came at the 0 millisecond, your P2 came at 1 millisecond। मतलब देखो सबके सब साथ में नहीं आए, सब अलग अलग टाइमिंग पे आए, ठीक है, सब अलग अलग टाइमिंग पे आए हैं। तो your P2 your P1 arrives at 0 millisecond, your P2 arrives at 1 millisecond, P3 arrives at 2 millisecond, P4 arrives at 3 millisecond, ठीक है। सबके आने का समय अलग अलग, okay। You have to calculate the waiting time for each and every process and you have to calculate the turn around time for each and every process, okay। The question will be given you in this particular way and you will be asked to calculate the average waiting time and turnaround time for the given set of data, okay। तो ऐसा आपको अगर डेटा दिया रहे तो फिर आपको कैसे करना है अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। आई होप दिस इज आपको ये दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको नीचे लेता हूँ, हाँ यहाँ पर हमारा गैंट चार्ट बनने वाला है, ठीक है। अरे रिप्लाई करो, आ रहा है ना आप लोगों को, नजर आ रहा है? Okay, chalo let us start with the Gantt chart, okay। it's a primitive SJF, okay, it's a primitive SJF, okay। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी ये हमारा SRTM है, ठीक है, SRTF बोलो, SRT गैंट चार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग ये पॉइंट से, ठीक है। इसको मैं लंबा थोड़ा सा गैंट चार्ट को खींच लेता हूँ, ओके ओके। सो योर टाइम स्टार्ट विद 0, ओके, दिस इज योर टाइमलाइन, ओके। अब आपकी जो है ना मोटी अक्ल से बताओ मुझे, आपकी जरा मोटी मोटी अक्ल से मुझे बताओ, यू पीपल्स आर हैविंग यू नो idea about it, which process will come for the execution first, okay। We are at time 0, remember we are at time 0, okay। At this time 0 how many processes are present right now? At this particular time 0 how many processes are present? Only one process, very good, only one process is present right now, okay। So you need to take care of each and every millisecond while you are making the Gantt chart, okay। So at time 0, because you know arrival time at 0 only one process was there, that is P1 with having burst time of 7। अच्छा, कंपैरिजन के लिए कोई और प्रोसेस है भी हमारे पास में? कोई भी नहीं है, from which we can compare that कि हाँ these two processes are having the least amount of burst time and will execute this the least वाला। बट हमारे पास में इस समय कोई भी प्रोसेस नहीं जिसके साथ में हम लोग क्या कर सके, कंपेयर कर सके। सो एट टाइम 0 मैं तो ऐसा मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो P1 अराइव, ओके, एट टाइम 0 P1 अराइव विद 7 मिलीसेकंड का बर्स्ट टाइम।
So obviously your processor, your system is going to execute that process on. या कोई और ऑप्शन है हमारे पास में? है कोई और ऑप्शन हमारे पास में? कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में. So system will execute process one first, even it is having 7 millisecond का burst time. Okay, so ये P1 start with this particular point. अब P1 भाई साहब स्टार्ट हुए यहाँ पर, और जैसे ही 1 मिलीसेकंड हुआ, ध्यान रखना, ट्राई करो फोकस करने के लिए. जैसे ही 1 मिलीसेकंड हुआ, आपके P2 भैया ने एंट्री ली. ओके, योर P2 विल कम फॉर एग्जीक्यूशन हैविंग बर्स्ट अमाउंट ऑफ 4 मिलीसेकंड. तो भाई साहब देखो अब कंपैरिजन. अच्छा, ये टाइम पे आपको क्या करना है, चेंजेस करते जाना है. कैसे चेंजेस करेंगे तो ध्यान से देना. ठीक है, P1 started 0 millisecond. P1 started 0 millisecond and it has already executed 1 millisecond at time 1. ठीक है, at time 1 it has completed. अच्छा, ये टाइम पे कौन आया अभी आपका? P2 ने एंट्री लिया. ठीक है, जैसे ही P2 ने एंट्री लिया, P2 is having least amount of burst time, having 4 millisecond, which is less than the 7. But right now इसका 7 नहीं है, इसने already 1 millisecond execute कर लिया है. Your P1 has already executed 1 millisecond. So how much is remaining? P1 was having burst time of 7 millisecond and it has now executed 1 millisecond. So how much is remaining? 7. So I will write in this way /6. तो अभी ये टाइम पे अभी क्या है? 6 मिलीसेकंड अभी उसका बाकी है. अब आप क्या करो, कंपैरिजन. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 1 मिलीसेकंड इट हैज 6 मिलीसेकंड रिमेनिंग राइट. ठीक है, सो नाउ you are at 1 millisecond. Now you are going to compare it कि 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, या फिर 6 छोटा है या 4 छोटा है. so, दोनों के कंपैरिजन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? यही तो हमारा मेन टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर. दिस इज द प्रीम्प्टिव वर्जन ऑफ SJF. दिस इज द प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. कंपेयर करने के बाद में क्या करेंगे बोलो? कंपेयर करने के बाद में P1 को निकालना पड़ेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. So we have to preempt. In technical words, in technical terms, we can say we have to preempt the currently running process. We have to preempt the currently running process having burst time having burst time greater than the upcoming process. Okay, so we have to preempt the currently running process. The currently running process is P1. Okay, तो हम लोगों ने क्या किया? P1 को निकाल के बाहर फेंकेंगे. ठीक है, तो P1 भाई साहब जो कि रनिंग स्टेट में थे. नाउ यू कैन इमेजिन द स्टेट डायग्राम. तो रनिंग से कहाँ निकाल के फेंकेंगे? रनिंग से उसको हम लोग फेंकेंगे आपके वेटिंग में, या फिर उसको बोल दो सीधा आपके रेडी में दे दिया, बिकॉज उसको कोई आयो रिक्वायरमेंट तो था नहीं. तो हम लोग ने कहाँ दे दिया उसको हम लोग ने फिलहाल अभी भेज दिए वापस से रेडी के पास. ठीक है, तो अब ये टाइम पे आपका 6 और 4 में कंपेयर किए तो दोनों में छोटा कौन? 4 छोटा. ठीक है, सो P2 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, तो P2 भाई साहब ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की. अब जैसे ही 1 मिलीसेकंड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा. जैसे ही 1 मिलीसेकंड हैज पास नाउ, सो अगेन एट दिस, ये थोड़ा मुझे नहीं बनाना चाहिए था. ये नहीं, ये आपकी लाइन नहीं है. ठीक है, सो जैसे ही 1 मिलीसेकंड हुआ तो ये टाइम हो गया 2 मिलीसेकंड, जो आपका टाइमलाइन है. एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम योर P3 will come. Okay, will come for execution. Now at this moment of time your P2 has executed. So ये मोमेंट टाइम पे आपका, इसलिए आपका हो गया कितना? ये हो गया 3. ठीक है, बिकॉज ये आपका 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूशन हो चुका है. ठीक है, अब नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम योर P3 मेक्स एन एंट्री. तो अब हम कंपेयर करेंगे 6 और 3 और 8. तीनों में कंपेयर करो, बोलो सबसे छोटा प्रोसेस कौन है इन तीनों के कंपैरिजन में? विच इज द प्रोसेस हैविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ बर्स्ट टाइम? स्टिल P2 है. तो क्या हम P2 को प्रीम करेंगे? नहीं करेंगे P2 को. ठीक है, P2 को हम लोग बोलेंगे भाई तू कंटिन्यू कर, तेरा सबसे कम है, तू सबसे छोटा है यहाँ पे, इसके लिए तू कंटिन्यू कर. सो P2 विल कंटिन्यू. ठीक है, तो P2 भाई ने कंटिन्यू किए. अभी आगे एक और मिलीसेकंड गुजरने के बाद में, जहां पर आपका टाइम है 3 मिलीसेकंड, तो आपके P4 भैया एंट्री लेते. ठीक है, सो P4 विल कम. ओके, P4 जब आया तो हमारा जो P2 जो कि रनिंग में था, तो एक मिलीसेकंड और एग्जीक्यूट हो चुका है. अब नाउ इट इज हैविंग बर्स्ट टाइम रिमेनिंग कितना है? 2 है. ठीक है, तो 2 है. तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि 6 बड़ा, मतलब कि 6 छोटा, कि 2 छोटा, या 8 छोटा, या 3 छोटा.
आप बोलो सबसे लीस्ट वन कौन है, अरे बोलो, which is the least one? Your P2 is still the least amount of burst time having. Okay, so your P2 will continue. Your P2 will continue. और कोई आने वाला है पीछे से, और कोई भी प्रोसेस आने वाला नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, कंपटीशन खत्म, अब कोई पीछे से आने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, P2 will complete its execution। तो P2 एग्जीक्यूशन कहाँ कंप्लीट करेगा, 3 के बाद में हो जाएंगे 4, टोटल P2 का कितना है 4 मिली सेकेंड इसको एग्जीक्यूट होना है। देखो टोटल कितना है इसका 4 millisecond। Okay, so it will execute for 1 more millisecond। तो ये हो गया आपके P2 भाई का completion। ठीक है, so this is the way we have printed the P1 which was the executing process, which was the currently executing process। but now जो newly arrived process आया जो कि आपका P2 आया having least amount of burst time, तो इसके लिए हम लोग को P1 को preempt करना पड़ेगा। that's why this is the preemptive version of SJF। okay, here we are considering the least amount of burst time, so this is the SJF का type है। ठीक है, so this is the preemptive version of SJF which is also called as shortest remaining time first। okay, तो ये आपका अभी P2 का एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, अब P2 के बाद में अब P2 हो गया तो P2 को अब जाओ भूल। ठीक है, P2 हो गया, अब P1 के अंदर ऑलरेडी 1 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड पे नहीं, इसका टाइम कितना है 0 1। अच्छा हाँ बराबर, तो मतलब मैं यहाँ से समझा ना एक्चुअली, इसके लिए सॉरी, थैंक यू। तो ये इसको चलो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 4 मिली सेकेंड, और ये हो गया हम लोग का 5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका टोटल जहाँ पर 1 मिली सेकेंड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ 4 मिली सेकेंड के लिए, तो टोटल हो गया 5। अब सही है भाई, अरे अब सही है, ओके वेरी गुड। मुझे एक्चुअली देखो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है, और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो आंसर्स आना चाहिए वो आंसर्स हमारा नहीं आ पाता। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। इवन मैं कर रहा था, तो मैं 1 साल के बाद में कर रहा हूँ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे जब आप लोग टाइमलाइन बनाएंगे, सो व्हाइल मेकिंग द गैंट चार्ट यू नीड टू टेक एटमोस्ट केयर कि भाई ये सब सारे के सारे नंबर्स आपके प्रॉपरली एंटर। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपके 5 मिली सेकेंड, बिकॉज 4 मिली सेकेंड का इटसेल्फ आपका P2 है। ठीक है, और 1 मिली सेकेंड के P1 भी एग्जीक्यूट हुआ था, तो 1 + 4 आपका 5 मिली सेकेंड आपकी टाइमलाइन पहुंच गई। ओके, अब यहाँ पर आपके अवेलेबल कौन कौन से P1 P3 P4 6 8 3 which is having the least amount of burst time out of P1 P3 and P4, which process is having least amount of burst time, your P4 is having least amount of burst time, so your P2 will come, your P4 will come for execution। so P4 will execute for how much millisecond, 3 मिलीसेकेंड। तो 3 मिलीसेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, और P4 भाई साहब बाहर निकल गए। ठीक है, सो ये हो गया 3 मिलीसेकेंड। स्टार्टिंग में जो भी जो लोचा है ना, आई मीन टू से जितना भी गड़बड़ है, कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज प्रेजेंट इन द इनिशियल फेज ओनली। ओके, once the processes are arrived safely, so you can easily do the things remaining tasks। okay, so 5 + 3 becomes 8, the timeline goes to 8 because it will execute for 3 millisecond। so ये हो गया 8। okay, और होने के बाद में फिर अब ये आपका P4 भी हो चुका है, P4 को भी मैंने मार्क कर दिया ना। आउट ऑफ P1 एंड P3 इसका 6 है, इसका 8 है, which is having the least amount of burst time 6। okay, मतलब P1 का है। okay, so P1 will come for execution। P1 has already executed 1 millisecond of burst time। P1 has already पहले आके 1 मिलीसेकेंड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है भाई साहब ने। तो अब उसका कितना बाकी है, सिर्फ 1 मिलीसेकेंड और बाकी है, ओनली 1 मिली सॉरी P1 has executed for 1 millisecond, so now only 6 milliseconds are remaining। okay, तो भाई साहब अब यहाँ पर 6 मिलीसेकेंड, देखो यहाँ पर अब कंफ्यूजन है, यहाँ पर 1 मिलीसेकेंड हो गया, और यहाँ पर उसको आपको 6 मिलीसेकेंड का टाइम देना है। ठीक है, तो 6 मिलीसेकेंड हम लोग ने यहाँ तक दे दिया, तो 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया। Here P1 will come out। okay, okay 14 राइट, वेरी गुड। और फिर लास्ट में we have the remaining, the P3 is remaining now, so P3 will come for execution 8। okay, it is having 8 क्योंकि वो कुछ भी एग्जीक्यूट हुआ नहीं अभी तक। so 14 + 8 कितना हो गया 22। okay, चलिए इसको हम लोग एक बार वापस कल रिपीट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। तो ये हो गया आपका 20। ठीक है,
ये आपका हो गया 20 और P3 एग्जीक्यूट होने के बाद में P3 निकल गया आपका बाहर, ठीक है। इतना होने के बाद में अब 22, हाँ सॉरी 22, राइट राइट राइट, मैंने सोचा 22 और लिख दिया मैंने 20, ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका। अब चलो कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना, वरना आपका एक्चुअल जो वैल्यू है, जो आउटपुट है, वो एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये बोला था, ठीक है। तो चलो निकालते हैं P1 का वेटिंग टाइम। तो P1 भाई साहब ने कितना वेट किया, हम लोग जरा यहाँ से देखो, देखो अब आपका ये जो है ना टेबल काम नहीं आएगा, अब आपका ये चार्ट काम आएगा, ठीक है। तो P1 में इसने वेट कितना किया, 0 मिली सेकेंड। तो देखो मैं आपको यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा मालूम, वेटिंग, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वेटिंग टाइम फॉर P1। P1 के लिए वेट आप लोग वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो P1 ने कितना वेट किया जरा मुझे बताओ, पहले तो 0 मिली सेकेंड वेट किया, और भी एक जगह उसका स्लॉट है, प्लस ऐसे आपको लिखना है, P1 हैज अगेन वेटेड फॉर हाउ मच टाइम, अरे बोलो कितना वेट किया है, यहाँ पर 8 लिख के आ रहा है, बट यहाँ पर ऑलरेडी 1 मिली सेकेंड है यहाँ पर, तो 8 - 1 कितना हुआ, 7, ये आपका आ गया 7, ओके। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये आपका, आपने यहाँ पर 0 मिली सेकेंड वेट किया, ठीक है। यहाँ पर आपका P1 एग्जीक्यूट यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट हैज वेटेड फॉर 0 मिली सेकेंड प्लस, और यहाँ पर उसने कितना वेट किया, 8 मिली सेकेंड, बट यहाँ पर ऑलरेडी P1 चल रहा था, तो जो इतना टाइम जो उसने वेट किया है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का, जो मैंने एरो मार्क करके बताया हूँ, सो इतना जो टाइम है वो है 7 मिली सेकेंड का। और कहीं पे P1 एग्जीक्यूट हुआ है राउंड रॉबिन फैशन, द अपकमिंग एल्गोरिथम, उसके अंदर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक एक प्रोसेस ना दो दो तीन तीन पांच पांच 10 मरतबा एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पर आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका P1 के लिए। P2 के लिए चलो वेटिंग टाइम निकालते हैं। P2 कहाँ का एग्जीक्यूट हुआ है, P2 यहीं पर एग्जीक्यूट, P2 देखो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि P1 आपका 2 बार हुआ है और बाकी हर कोई प्रोसेस एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। सो P2 हैज वेटेड फॉर 1 मिली सेकेंड, और कहीं पर है P2 नहीं है। P3 हैज वेटेड फॉर हाउ मच, P3 हैज वेटेड फॉर 14 मिलीसेकंड, ओके। योर P4 हैज वेटेड फॉर 5 मिलीसेकंड, ओके। चलो हो गई बात, ये आपका ये आपका आ गए वेटिंग टाइम, इसको आप कैलकुलेट कर लो और अपना एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। एवरेज वेटिंग टाइम आपका अराउंड कुछ आ जाएगा, कितना आएगा बोलो, average waiting time is equal to waiting time for P1, for P2, for P3, for P4 divided by 4. So it will become around 5.2, 5.2, 6.75, 7 plus, ध्यान से देखिए ध्यान से, हम्म, एक चीज छूट रही है हम लोग से है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान दो ध्यान दो। अब ये आपके साथ में कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। अब हम लोग एक बार और कैलकुलेट करते हैं फॉर P1, वापस बोल रहा हूँ ध्यान दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। P1, P1 का तो चलो आपने बोल दिया भाई साहब के आपका P1 ने वेट किया है 7 मिलीसेकेंड, ठीक है, जो ये मैं लिख दे रहा हूँ। P2 में थोड़ी सी गड़बड़ है, P2 में थोड़ी सी गड़बड़ है, कैसी गड़बड़ जरा मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा कैसी गड़बड़ है। टाइम थोड़ा एक्सीड हो रहा है, होने दो, बट ये इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। जो P2 का जो हम लोग ने लिखे हैं, अराइवल टाइम नहीं देखे, वेरी गुड देखे, चलो अभी यहाँ पर मेन पॉइंट आउट हुआ है, ठीक है। सो वेरी गुड, और जिन जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि हाँ अराइवल टाइम नहीं चेक किए, सो गुड, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। बट इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा, हर एक चीज आपको समझ के फिर उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने P2 कैलकुलेट किए थे 1, अपने अपने आपने बोला सर P2 तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये भी तो सोचो कि P2 भाई साहब तो यहाँ पर आए हैं, ठीक है। P2 आया ही वहीं पर है, जब आया ही वहीं पर है, सो 1 - 1 सिंपल, तो कहाँ पर आया यहाँ पर, मतलब स्टार्ट वेट किया 1 मिलीसेकेंड, लेकिन आया कब,
1 मिली सेकेंड पे है, तो 1 माइनस 1 बिकम 0, तो आपका P2 का कितना वेट हुआ, P2 ने 0 मिली सेकेंड वेट किया। P3 का देखो, P3 has waited for how much, it has waited for 14 millisecond, okay, 14 मिलीसेकेंड में से वो आया कब है P3, आपका P3 यहाँ पर आया, मतलब माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा बोलो, माइनस कितना करना पड़ेगा, अरे बोलो ना, 2, ओके, तो 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 बिकम कितना, 12, होगी वैल्यू चेंज, ओके। उसके बाद में P4, तो P4 भाई साहब एग्जीक्यूशन यहाँ से हुए, ठीक है, कितना वेट किए P4 ने, 5 मिली सेकेंड वेट किए, बट आए कब P4 भाई साहब, आपके 3 मिली सेकेंड पे आए, तो 5 माइनस 3 हाउ मच, तो P4 की होगी वैल्यू 2, होगी सबकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू चेंज हुई, इसकी वैल्यू चेंज हुई, इसकी वैल्यू चेंज हुई, अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो क्या होता, 5 माइनस 2, अच्छा P3 2 पर आए ना, हाँ, 5 माइनस 2, वेरी गुड, 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3, राइट, अरे नहीं ना, सही है ना, P4 का कैलकुलेट करें ना हम लोग, सही तो लिखा हूं मैंने, 5 माइनस 3 आना चाहिए, सही है ना, 5 माइनस 3, अरे बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो, यस ओके वेरी गुड, सो अब कैलकुलेट करो आपका, ठीक है, यहाँ देखो कुछ और ही बनता ही कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पर कैलकुलेट अभी करेंगे, 12 प्लस 2 14 एंड 7 21, ओके, तो 21 डिवाइडेड बाय 4 कितना बोलो, 5.2 मिली सेकेंड, तो ये जो आपने जो पॉलिसी आप लोग ने अडॉप्ट की है, वी हैव टू प्रीम द process having least amount of burst time in SJF algorithm, तो इसके 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 थ्रू हम लोग को 5.2 मिली सेकेंड का एवरेज वेटिंग टाइम मिला, क्या मिला, एवरेज वेटिंग टाइम, ओके, एंड दिस एवरेज वेटिंग टाइम, ये वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से आप लोग टर्न अराउंड टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, इसी सेम डेटा सेट को, इसी सेम डेटा सेट को चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सामने रखा हूँ, ठीक है, इसी डेटा सेट को लेकर आपको नॉन प्रीम्प्टिव एसडीएफ के लिए सॉल्व करना है, नॉन प्रीम्प्टिव एसडीएफ के लिए सॉल्व करना है, तो नॉन प्रीम्प्टिव आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके, आई होप दिस इज क्लियर, 11 2 हो गए हैं, others are waiting,